آج کی ویڈیو ہے اس ایک خوش قسمت عورت اور اس ایک خوش قسمت مرد کے بارے میں جن کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض ادا کیا۔ عین اس لمحے میں یہ کوئی آسان نہیں تھا، یہ مشکل تھا، جان دینے والی بات تھی، لیکن وہ گھبرائے نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ معاملہ اللہ کے رسول کی جان کا تھا۔ میں پہلے ذکر کروں گا اس عورت کی بہادری کو، کیونکہ عورت کا بہادری دکھانا یہ مرد کے بہادری دکھانے سے بڑی بات ہے، کیونکہ عورت تو نزاکت کے لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن جب بات محبت رسول کی آئی اور حفاظت رسول کی آئی تو اس نے اپنی نزاکت کو اپنے پیچھے چھوڑا اور مردانہ صفات کو اپنے اندر داخل کیا اور وہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے لگی۔ ان کا نام نصیبہ بنت کعب تھا اور وہ ام عمارہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوئی، وہیں پہ پرورش پائی۔ وہ بنو نجار قبیلے سے تھیں جو نبی علیہ السلام کے ننہالی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں اس وقت سنا جب نبی کریم ابھی مدینہ تشریف بھی نہیں لائے تھے، اور انہوں نے انتظار نہیں کیا جب مدینہ کے 70 آدمیوں نے رسول اللہ سے بیعت کرنے کے لیے خفیہ طور پر مکے کا سفر کیا تو وہ بھی ان کے ساتھ گئیں۔ 70 مرد اور 2 عورتیں، اور 2 عورتوں میں وہ ایک شامل تھیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے زبانی بیعت لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، لیکن وہ وہاں موجود تھیں اور اپنے موجود ہونے پر قائم رہیں۔ یہی بات کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کیسی تھی۔ ان کا پورا خاندان ایمان لے آیا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے حبیب اور عبداللہ اور ان کے بھائی، یہ سب انصار کے ابتدائی صف میں شامل تھے۔ اور پھر احد کا ایک دن آیا۔ وہ احد کے میدان میں اسی طرح آئیں جیسے مومن عورتیں آیا کرتی تھیں، پانی کی مشق کے ساتھ، مرہم پٹی کا سامان لے کر، زخمیوں کی خدمت کے لیے تیار۔ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئی تھیں، یہ کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اور پھر 300 آدمی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ گئے، بہانے کرتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے، جیسے آج کل کے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اپنے حق کی لڑائی لڑتے ہوئے دیکھیں تو ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور پھر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس دن منافقین نے یہی کیا اور اپنے 300 آدمی لے کر مدینہ واپس لوٹے۔ مسلمان 700 رہ گئے 3000 کے مقابلے میں، اور پھر تیر انداز پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور سب کچھ بکھر گیا۔ افراتفری کے درمیان خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے، لوگوں نے اپنے زرہیں اتار دیں، لوگ واپس پلٹنے لگے اور وہ یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ہولناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے میدان سے نا امید پلٹتے ہوئے ایک آدمی کو روکا، اپنے ہتھیار مجھے دے دو، یہ ہتھیار اس کو دے دو جو لڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس واپس پلٹتے شخص نے اپنی تلوار اور اپنی ڈھال چھوڑ دی۔ حضرت نصیبہ بنت کعب نے اس کو اٹھایا اور وہ بھاگیں، نبی علیہ السلام سے دور نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی طرف بھاگنے لگیں۔ جب وہ نبی علیہ السلام تک پہنچی تو وہاں بہت کم لوگ باقی رہ گئے تھے، 10 آدمی، شاید اس سے بھی کم۔ ان کے شوہر وہاں تھے، ان کے دونوں بیٹے بھی وہاں تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور لڑنا شروع کر دیا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میں جدھر بھی دیکھتا تھا، دائیں بائیں، اپنے سامنے اور پیچھے، میں نصیبہ بنت کعب کو اپنی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے ہی دیکھتا تھا۔ ذرا سوچیں کہ اس کے لیے کتنی ہمت درکار تھی۔ صحابہ کرام کی بہترین جماعت، وہ عظیم ترین نسل جو کبھی زمین پر چلی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، نا امید ہو گئی تھی، تلواریں گردنوں پر گر رہی تھی، زمین خون سے بھر چکی تھی، چیخ و پکار اور ہر طرف افراتفری، اور وہ ایک نازک جان، نزاکت سے بھری ایک عورت آگے بڑھ رہی تھی، لاپرواہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ ایسی محبت میں پھر انسان نہیں سوچتا، بس قدم خود ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، انسان کو سوچنا نہیں پڑتا۔ اسی دوران ان کے بیٹے عبداللہ پر وار ہوا، وہ بری طرح زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، وہ گر پڑے، لیکن وہ نصیبہ بنت کعب لڑائی سے نہیں رکی، ایک لمحے کے لیے اپنی تلوار رکھی، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے زخم کو باندھا، پھر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹا اٹھو، دوبارہ اٹھو، اللہ کے رسول کا دفاع کرو۔ پھر انہوں نے دوبارہ تلوار اٹھا لی۔ نبی علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے نصیبہ تم جیسا کون کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا جس نے نصیبہ بنت کعب کے بیٹے عبداللہ پر وار کیا تھا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ فوراً اس کے پیچھے نکل پڑی، میدان جنگ میں اس کا تعاقب کیا، پھر اس پر وار کیا، وہ گر پڑا تو صحابہ کرام نے اسے ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا الحمدللہ، اللہ نے تمہیں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا بدلہ دیکھنے دیا۔ دن ختم ہوا تو وہ 13 زخم کھا چکی تھیں۔ ان کے کندھے پر ابن قمیہ کا وار تھا، وہی شخص جس نے رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے تھے، اتنا گہرا کہ اسے بھرنے میں پورا 1 سال لگ گیا۔ اس سب کے درمیان وہ خود زخمی، بیٹا ان کے پاس زخمی پڑا ہوا، دشمن اب بھی حملہ آور ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے ہم
जन्नत में आपके साथी बन जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस खानदान को जन्नत में मेरा साथी बना दे। वो कहने लगी, अब इसके बाद मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होता है। वो ओहद में जिंदा रही, फिर खंदक में, फिर हुदैबिया में, फिर हुनैन में। क़यामत तक आने वाले बुज़दिलों को ये बताने के लिए कि जंगे मौत का पेश खैमा नहीं हुआ करती, मौत तो अल्लाह के हुक्म से आती है। उस दिन के बाद रसूलुल्लाह जिस जिस मार्के में तशरीफ ले गए वो हर जगह मौजूद रहीं। अब किसी में ये जुर्रत नहीं रही कि उनसे कहा जाए कि तुम नहीं आ सकती। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हबीब को कैद कर लिया। वही हबीब जो नुसैबा बिन्त काब का बेटा था, उसे अपनी कौम के सामने खड़ा किया और पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? हबीब ने कहा, बिल्कुल मैं गवाही देता हूँ। फिर उसने कहा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं मुसैलमा अल्लाह का रसूल हूँ? हबीब ने जवाब दिया, मैं नहीं सुनता आपकी बात को, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। उसने 3 बार पूछा, तीनों बार हबीब ने यही कहा कि मुझे तेरी बात सुनाई नहीं दे रही। फिर मुसैलमा ने उन्हें सख्त अजियत दी और शहीद कर दिया, लेकिन वो हर हाल में यही कहते रहे कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल हैं। ये खबर उस माँ तक पहुँची, सिर्फ ये नहीं कि उनका बेटा शहीद हो गया, बल्कि ये भी कि वो कैसे शहीद हुआ। फिर उस माँ ने जो जवाब दिया, आज ये जवाब हर माँ के दिल पर लिखा हुआ होना चाहिए। उस माँ ने कहा कि मैंने हबीब को इसी दिन के लिए तैयार किया था और मैं इसके बदले अपना अजर अल्लाह से चाहती हूँ। फिर उन्होंने एक और बात कही कि अगर मैं जिंदा रही और मुसैलमा को देखा तो मैं उसकी बेटियों को उस पर रुलाऊंगी। यूं उन्होंने एक आहद कर लिया, एक अल्लाह से वादा कर लिया। वो 60 साल से ज्यादा उम्र की थी। जब मुसैलमा के खिलाफ निकलने की पुकार आई तो उन्होंने अपना आहद याद किया और रवाना हो गईं, अपने एक बाकी रह जाने वाले बेटे अब्दुल्ला के साथ और एक ही बाजू के साथ, क्योंकि दूसरा बाजू वो पहले ही अल्लाह की राह में खो चुकी थी। मैदान जंग लगा तो वो बार बार पूछती रही, अल्लाह का दुश्मन कहाँ है, मुझे दिखाओ कि वो कहाँ है। उस दिन वाशी बिन हर्ब, जिसने अल्लाह के रसूल के चचा हजरत हमजा को शहीद किया था, फिर तौबा की थी, उस वाशी ने वही नेजा फेंका जो मुसैलमा को लगा और फिर उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला उस मुसैलमा को खत्म कर दिया और यूं उस खानदान ने अपना वादा पूरा कर लिया। आइए वहाँ वापस चलते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी। ओहद के दिन उन्होंने तलवार उठाई, ना वो बाकायदा तरबियत याफ्ता थी, ना ज़िरा पहने हुए थी। वो बस इसलिए आगे बढ़ गईं क्योंकि रसूलुल्लाह खतरे में थे। ये कोई आम माने में बहादुरी नहीं थी, ये वो कैफियत थी जो मोहब्बत इंसान के दिल में मुकम्मल हो जाए तो ये वाली कैफियत पैदा होती है। ऐसी मोहब्बत में हिसाब नहीं होता, सिर्फ अमल होता है। सोचे नहीं होती, सिर्फ फैसले होते हैं। ओहद के दिन उन्होंने 13 जख्म सहे। एक झूठे नबी के हाथों अपना बेटा खो दिया, एक और मार्के में अपना बाजू भी खो दिया, फिर भी एक बाजू के साथ दोबारा लड़ी और अपनी आंखों से देखा कि उनके दूसरे बेटे ने अपने शहीद भाई का बदला ले लिया। नुसैबा ने यह कभी इंतजार नहीं किया कि वो मुकम्मल तैयार हो जाएं। उन्होंने मिसाली हालात का इंतजार नहीं किया, जो कुछ मुयस्सर था उसी को थामा और आगे बढ़ी। उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम किस इंतजार में हो? इस इंतजार में कि मुकम्मल हो जाओ, इस इंतजार में कि तुम्हारे पास लोहे की तादाद ज्यादा हो जाए, इस इंतजार में कि तुम्हारे पास पैसा बढ़ जाए। इंतजार करते रहोगे तो ये बात साबित होने लगेगी कि तुम्हारा यकीन उस लोहे पर है, अल्लाह पर नहीं। जो मुयस्सर है उसको थामो और फिर ये बात यकीन रखो कि तुम्हें एक दिन लोहे से लोहा बजाना है या फिर तुम्हें खत्म होना है। फैसला तुम्हारा है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिर एक दूसरे मर्द ने भी अल्लाह के रसूल की हिफाजत की थी। उस एक खूबसूरत मर्द का नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह था। लंबे कद का, सांवले रंग का, खूबसूरत शख्सियत का, कबीला बनु तमीम है। हजरत अबू बकर के करीबी रिश्तेदार थे। वो कपड़े के ताजिर थे जो शाम और यमन के तिजारती रास्तों पर तिजारत करते। उनका कारोबार महंगे कपड़ों पर मुश्तमिल था। उनके पास याकूत जुड़ी सोने की अंगूठी भी थी। वो अपनी कमाई खुद करते थे, अपनी पहचान खुद बनाते थे और किसी के मोहताज नहीं थे। 18 साल की उम्र तक उनके पास दुनिया की वो सब चीजें थीं जिनकी एक इंसान ख्वाहिश करता है। वो शाम के तिजारती रास्ते पर थे जब उनकी मुलाकात एक ईसाई राहिब से हुई। राहिब ने उनसे पूछा, क्या अहमद जाहिर हो चुके हैं? तलहा बिन उबैदुल्लाह को इस वक्त अहमद के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये अल्फाज उनके दिल में उतर गए। वो मक्का वापस आए और सीधे हजरत अबू बकर के पास गए। उसी दिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में, अभी वो उस वक्त सिर्फ 18 साल के थे। उसके अपने खानदान ने इस बात को अच्छा नहीं समझा। गलियों में लोगों ने ये मंजर भी देखा कि एक नौजवान जिसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और एक हुजूम उनके सर पर मुक्के बरसा रहा था और उसके पीछे एक औरत थी, उसकी माँ, जो उसे कोड़े मार रही थी और बदतरीन
बेहतरीन अल्फाज चीख चीख कर कह रही थी, लेकिन वो 18 साल का नौजवान पीछे नहीं हटा। फिर वक्त गुजरता है, 3 हिजरी आता है और गज़वा उहुद होता है। तलहा बिन उबैदुल्लाह गज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें अबू सुफियान बिन हर्ब के काफिले की खबर लाने के लिए भेजा था। वो वापस आए तो जंग खत्म हो चुकी थी। इस बात पर उन्होंने खुद को बहुत मलामत की। इसलिए जब उहुद का वक्त आया तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो पीछे नहीं रहेंगे। जंग का आगाज अच्छा हुआ, लेकिन फिर कुछ तीर अंदाज अपनी जगह छोड़ गए। दुश्मन का घुड़सवार दस्ता हमला आवर हुआ और मुसलमान मुंतशिर हो गए। फिर सफू में आवाज फैली कि नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है। ऐसा नहीं था, लेकिन वो शदीद खतरे में थे। मुशरिकीन को नबी अलैहिस्सलाम का मकाम मालूम हो गया था। आप जख्मी थे और एक गड्ढे में गिर गए थे। तीरों की बारिश हो रही थी। तलहा बिन उबैदुल्लाह रास्ता बनाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे और एक हाथ से वो नबी अलैहिस्सलाम को गड्ढे से निकाल रहे थे और दूसरे हाथ से दुश्मन को रोक रहे थे। जब भी नबी अलैहिस्सलाम ने यह आवाज लगाई कि कौन अल्लाह के रसूल का दिफा करेगा, तलहा बिन उबैदुल्लाह हमेशा आगे बढ़े। वो खुद को तीरों के सामने डाल देते, अपने जिस्म से नबी अलैहिस्सलाम को ढांप लेते। जख्म पर जख्म। उनके साथ अंसार के 11 आदमी थे। वो एक एक करके गिरते गए, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ वही रह गए। नबी अलैहिस्सलाम को उहुद की पहाड़ की एक गार तक पहुंचना था, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चट्टान चढ़ना जरूरी थी। नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक जख्मी हो चुके थे, चेहरा खून से लबरेज था। तलहा बिन उबैदुल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांप रहे थे। अपने जख्मों के बावजूद आगे बढ़ते जा रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम को महफूज मकाम तक पहुंचा रहे थे। आखिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को एक गार तक पहुंचा दिया और फिर खुद गिर पड़े। जब सब कुछ खत्म हुआ तो लोगों ने तलहा बिन उबैदुल्लाह की तरफ देखा। एक हाथ मफलूज हो चुका था। बाद में उनकी बेटी ने बताया कि उस दिन 24 जख्म ऐसे थे जो कभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए, लेकिन वो अब भी जिंदा थे, सांस ले रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने तलहा बिन उबैदुल्लाह के चेहरे की तरफ देखा और खुशी से फरमाया कि तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी जिंदा शहीद को देखना चाहता है वो तलहा को देखे, और आगे फरमाया उहुद का दिन तो तलहा का ही दिन था। तुम सोचोगे कि ये सब काफी था, एक मफलूज हाथ, ऐसे जख्म जो कभी ठीक नहीं हुए और जन्नत की खुशखबरी भी मिल चुकी थी। लेकिन तलहा बिन उबैदुल्लाह फिर भी बाद में आने वाली जंगों में अपना हिस्सा लेना जारी रखा। जब कुछ लोग घरों में रहने के बहाने ढूंढते थे, आज की तरह जो लोग ताने देते थे, आज की तरह जो लोग कहते थे घरों में बैठते तो मारे न जाते, आज की तरह जो लोग कहते थे कि सुलह कर लेते तो ये अंजाम न देखना पड़ता, आज की तरह जो लोग घरों में बैठे रहते, बहाने बनाते, औरतों की तरह औरतों में रहते, आज की तरह। ऐसे वक्त में तलहा बिन उबैदुल्लाह मैदान में जाने के मौके तलाश करते थे। रिवायत में आता है कि तलहा बिन उबैदुल्लाह की दौलत बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसमें से तकरीबन सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। एक रात वो घर आए तो परेशान थे। उनकी अहलिया ने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा मेरे पास इतनी दौलत है, क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे इसके बारे में पूछेगा। उनकी अहलिया ने कहा तो आप सब कुछ खर्च क्यों नहीं कर देते, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह हमें खिला रहा है। वो फौरन उठे और सब तकसीम कर दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें और दिया और उन्होंने वो भी सदका कर दिया। और फिर एक दिन सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 23 नाजिल हुई। कुरान बोल पड़ा मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मोमिनों में ऐसे मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किए गए आहद को सच्चा कर दिखाया। सहाबा को हिम्मत न हुई कि पूछें कि ये किन लोगों के बारे में है। एक देहाती ने बराह रास्त रसूलुल्लाह से पूछ लिया। आगे से खामोशी, एक बार, 2 बार, 3 बार। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। फिर तलहा बिन उबैदुल्लाह मस्जिद में दाखिल हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ इशारा किया और फरमाया कि यह आयत नाजिल हुई इस आदमी के बारे में। तलहा बिन उबैदुल्लाह की जिंदगी का हर पहलू बामकसद था, यहाँ तक कि उनके बच्चों के नाम भी मोहम्मद, इमरान, मूसा, याकूब, इस्माइल, ईसा, एक के बाद एक बेटे, सबके नाम अल्लाह के अंबिया के नाम पर। उन्होंने ओहद के मैदान में अपने जिस्म के जरिए कहा मैं इस दीन के लिए सब कुछ दे दूंगा, और अपने बच्चों के नामों के जरिए कहा याद रखो कि हमारा ताल्लुक किससे है, हम किसके हैं। वक्त बढ़ता गया। नबी अलैहिस्सलाम अपने रब के पास चले गए। उम्मत एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गई और तलहा बिन उबैदुल्लाह अब उहुद वाले नौजवान नहीं रहे थे, अब वो एक बुजुर्ग थे और इम्तिहान भी बदल चुका था। वो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए निकले थे। फिर हजरत अली इब्न तालिब ने उनसे बात की और उन्हें वो बात याद दिलाई जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। तलहा रुक गए। उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ लिया। वो मैदान जंग छोड़कर वापस जा रहे थे। इसी दौरान एक तीर
تیر آ لگا, زخم سے شدید خون بہنے لگا, وہ زندہ نہ رہ سکے. ان کی پوری زندگی میں 74 زخم تھے, ہر ایک اللہ کی راہ میں. حضرت علی باہر آئے, انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا, وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. انہوں نے طلحہ کا سر اپنی گود میں اٹھایا, ان کے چہرے سے مٹی صاف کی اور رو پڑے. انہوں نے کہا, میرے نزدیک تم اس سے کہیں زیادہ معزز اور محبوب ہو کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھوں. پھر فرمایا, میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جنت میں میرا پڑوسی طلحہ ہوگا, اور انہوں نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی. آؤ اب پھر وہیں سے لوٹتے ہیں جہاں سے آغاز ہوا تھا. 3 ہجری, تیر برس رہے تھے, نبی علیہ السلام زخمی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر چکے تھے, آپ کے ساتھ موجود 11 آدمی ابھی شہید ہو چکے تھے, اور طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے آپ کو ہر آنے والے وار کے سامنے کھڑا کر دیا تھا.